इफ यू हैव समवन जो आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, एंड मेक्स यू बिलीव कि आपसे हो जाएगा, देन इट इज गुड टू बी इन अ रिलेशनशिप इफ इट इज हेल्दी. बट अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मेंटल एनर्जी, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, और बहुत एनर्जी जा रही है ये सब चीजों में सॉर्ट आउट करने में, सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. उनको मेरा नंबर दे देना कि इफ ही इज इंटरेस्टेड. कट. That came as a surprise. सीए तो मैं प्रिपेयर कर रही थी. That came as a that life surprised me. सीए बनने के बाद झगड़े कर लेना, मतलब सॉर्ट आउट कर लेना. बट सीए में हो तो फिर you need mental peace. You need शांति से पढ़ाई करना, तो ही आप फोकस कर पाओगे. Hi everyone, I hope you enjoyed our previous podcast with Shubham, Muskan and Jalmil. And today for our podcast number 4 जो हमें join करने वाली हैं, she is a qualified chartered accountant and उसके साथ साथ वो अपना योगा ट्रेनर, एंकर, मेंटोर, पब्लिक स्पीकिंग एंड आर्टिस्ट होने का पैशन भी फॉलो कर रही हैं. So please welcome CA Surabhi Gandhi. Thank you Surabhi ji for joining us. Thank you Rupesh for having me. ओके, सो बिफोर वी बिगिन एक छोटा सा आप इंट्रो दे दो अपना, एंड देन उसके बाद चिट चैट स्टार्ट करते हैं. Okay, great. So, hi everyone, this is Surabhi Gandhi. By qualification, I am a chartered accountant, and with that, as he mentioned, I am also a public speaker, a yoga trainer, an artist, and an anchor. So, I have been practicing yoga for the last 15 years, and my yoga pictures have also been reposted by actors like Hrithik Roshan. So now I am his brand's HRX athlete, and I have done shoots for national television, which got telecasted on channels like Dish TV and Tata Sky Beauty. That was with Sunil Shetty sir's company, FTC Talent. And in 2019, I was among the top 12 young leaders to be selected for an international youth convention, which happened in USA, where I got a chance to be at the United Nations headquarters, meet people like Sadhguru and Gaur Gopal Das. And I am a mentor by profession, so I've been mentoring CA students for the last couple of months. I cleared CA in May 2022 attempt, so that is last year. ये एक जन्म के हैं. And with that, I am also a YouTuber, so don't forget to subscribe to my channel, okay? तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के, सो those who cannot find कभी वो एग्जाम चाहिए, जिनको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, everyone follow, subscribe to both of our channels. अच्छा, सो सबसे पहला और मेरा फेवरेट क्वेश्चन. सो नॉर्मली जब भी हम सुरभि दी के इंस्टा या लिंक्डइन खोल के देखते हैं, चाहे सुपरमार्केट गए हो, चाहे किसी बुक स्टोर में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, फोन पे कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, सो शी जस्ट नीड्स कोई एक छोटा सा बहाना चाहिए योगासन करने का. सो हु वाज योर फर्स्ट इंस्पिरेशन जिन्हें देखकर आपको लगा कि मुझे भी योगा करनी चाहिए, वो बताओ. ये रुपेश ना मेरा पूरा स्टॉक करके आया. ही somebody understood very well. होमवर्क करके आया ये बरोबर. पकड़ लिया. So the thing is, when I started yoga, मतलब मुझे हमेशा से ना I always felt कि कहीं ना कहीं योगा थोड़ा सा बोरिंग, people don't do it, so maybe they feel that it is boring, या फिर maybe it is only for those elderly people, या फिर जो बीमार है उन लोगों के लिए. I always wanted to make yoga look interesting to people. तो मैंने क्या किया, when I started, जब मैंने स्टार्ट किया था, I started very small and it was only during COVID जहाँ पे I started creating content around yoga. So I always wanted to bring that wow factor in my yoga pictures. So what I did was, I started using props, जैसे as you mentioned, I started using flowers, books, telephone. I started doing it at different places. If you see my Instagram, you will find कि मैंने train में yoga किया हुआ है. I have done it with pets, dogs, everything. So then I wanted to bring that wow factor, and this is why I started using pets. Then one of my picture luckily got reposted by Hrithik Roshan, and after which I got a chance to be an RX athlete for his brand. So what happened was, my inspiration, it was. I used to see a lot of yoga pictures Instagram पे, and I used to take screenshots. तब I used to feel कि यार मेरे से ये होगा नहीं होगा, मैं screenshot लेके रखती थी, and then I used to try that out, and then I somewhere wanted to make it look unique, इसलिए I started using props. So I have been doing this for the last 15 years, but now I also teach people yoga. So my inspiration, I think it was my mother, because I have seen her doing yoga, and this is how it came in me. So अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू मेंशन्ड दैट वन ऑफ योर पोस्ट वाज रीपोस्टेड बाय ऋतिक रोशन, सो अकॉर्डिंग टू यू
passing your CA final or getting a post reposted by Hrithik Roshan, which one of both of these was a bigger moment? I think it was definitely it is both. I mean, I won't lie. Of course, यार CA final भी उतना ही ये है. ये तो बहुत ही difficult question पूछते हैं. But I think it was the one Hrithik Roshan वाला because that came as a surprise. CA तो मैं prepare कर रही थी. That came as a that life surprised me वैसे. So that this picture I will put it over here. We'll put it on the screen. That picture looks magical. I don't know if you've seen it. अगर आपने मेरे Instagram पे देखा होगा, that is the first picture that I've pinned. So that picture it looks unreal, it looks photoshopped, but trust me, that picture is real. So that picture went viral, people went crazy कि कैसे वो yoga pose किया मैंने, and that looks magical. A lot of people still don't know the trick. So I want every one of you, I want you all to comment below कि कैसे किया है वो yoga pose. So that is one picture that everyone should see, and मुझे I want to know कि वो कैसे किया. I want you all to crack the hack basically. चलो So ठीक yes, है. it So was another moment because that maybe it was huge for me. ग्रेट. अच्छा, एक नेक्स्ट और क्वेश्चन जो शायद आपसे बाकी लोगों ने भी जरूर एक ना एक बार तो पूछा ही होगा, जो इनफैक्ट सभी लोगों से पूछते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट योगासन ट्राई करते हैं, कि आपके शरीर के अंदर भी वही हड्डियां हैं जो हमारे शरीरों के अंदर है, और यू नहीं, हैव मेरा शरीर रबर बैंड से बना हुआ है. मेरा शरीर रबर बैंड से बना हुआ है. बोन्स तो of course यार, मतलब see, I'll tell you one thing. It is because I think it is because of the consistency. I have been doing it for the last so many years, and that is how I got the flexibility factor in me. So if you do something with consistency, you obviously tend to get better with time. So अगर if anyone who wants to get into yoga या फिर fitness, just make sure be consistent with your practice. So I think आपकी भी body flexible हो जाएगी. एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था दैट अभी कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम वाला जमाना आ चुका है, तो इस वजह से लेजीनेस बहुत आती है, कुछ करने का मन नहीं करता. सो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को कि वो लेजीनेस जो है उसके अंदर से चली जाए, या कुछ काम करने का एटलीस्ट का मन करे, पूरा दिन बेड पे लेटे रहने का मन ना करे. तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे रूम में जो बेड था वो मैंने हटा दिया परमानेंटली. तो अब मेरे रूम में कोई बेड नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द कंफर्ट जोन. जितना हो सके कंफर्ट जोन से दूर रहो, क्योंकि अगर अभी कंफर्ट जोन में चले गए ना तो आगे की लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी. अभी आपकी एज है मेहनत करने की. डू दैट हसल, डू दैट मेहनत. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज एवरीवन स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, बिकॉज वंस यू वेक अप अर्ली द एनर्जी, द फ्रेशनेस, जो थॉट्स रहते हैं ना, दे आर आई थिंक नेक्स्ट लेवल. यू फील कि यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट. एंड सुबह का टाइम इट इज कॉल्ड द ब्रह्म मुहूर्त, बिकॉज ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर. वट एवर यू थिंक यू कैन क्रिएट. सो आई फील अगर आपकी मॉर्निंग की जो स्टार्ट अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है. सो आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए. दिस वुड बी पर्सनल एडवाइस कि जितना हो सके अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो. कि नहीं तो लेजीनेस क्यों आती है. लेजीनेस इट इज बिकॉज यू फील दैट यू आर गुड फॉर नथिंग. आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे. सेल्फ डाउट होता है. सेल्फ डाउट में इंसान और चला जाता है और उसको लगता है कि यार उससे कुछ हो नहीं रहा है. इजीएस्ट वे क्या है, सो जाओ. अगर कोई भी प्रॉब्लम से एस्केप करना है, बेड पे चले जाओ, रील्स स्क्रॉल करते रहो, ये सब. सो डोंट ट्राई टू फाइंड वेज टू एस्केप फ्रॉम योर प्रॉब्लम. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो एंड दिन की शुरुआत अच्छी करो. अगर अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों को फॉलो करो. व्हाट पीपल यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर थॉट्स, ऑन योर मेंटल हेल्थ. क्योंकि जैसे लोगों को आप फॉलो करोगे आपके थॉट्स वैसे होते जाएंगे. सो इफ यू फॉलो पीपल हु आर एम्बिशियस, हु आर डूइंग समथिंग, आपका मन करेगा चलो मुझे भी कुछ करना है. अगर ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जो टाइम पास कर रहे, सी पीपल आर पोस्टिंग कंटेंट, दे आर मेकिंग मनी, दे आर गेनिंग फॉलोअर्स, वो देख के आप अपना टाइम वेस्ट करो इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग. सो आई थिंक हैव दैट विजन फॉर योरसेल्फ. अपने लिए एक विजन रखो कि यार मुझे भी यहाँ तक पहुंचना है. आई वांट टू डू दिस. आई थिंक दैट वुड हैव अ पर्पस इन लाइफ. मतलब डोंट बी एमलेस कि क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है. एंड ठीक है, अब तक जो हो गया सो हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते. आप जहां से चेंज कर सकते हो, ये वीडियो के बाद इफ यू कैन चेंज वट एवर यू हैव विजन फॉर योरसेल्फ, चेंज इट. तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट कैन हेल्प देम. अच्छा, अब जो नेक्स्ट सवाल पूछने वाला हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये सवाल मेरा नहीं है, किसी एक स्टूडेंट ने ही पूछा था जो मैं हूबहू पूछने वाला हूँ. सो ठीक है. ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट ने ये कहा था दैट दी आप इतने सुंदर हो तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते, बाकी सब चीजें करते हो, सो व्हाई डोंट यू इवन ट्राई मॉडलिंग. सो ऑनेस्टली आई बी वेरी ऑनेस्ट कि देयर वाज अ टाइम जब मुझे मॉडलिंग करनी थी. एंड
बिकॉज ऑल्सो बिकॉज आई हैव अ गुड हाइट, आई एम क्वाइट टॉल. तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि व्हाई डोंट यू ट्राई आउट मॉडलिंग, बट ऐसा हो रहा था कि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी एंड आई कुड नॉट मैनेज वो सारी चीजें. So, but yes, after my CA exam, I did give a shot in this sector of my life. और मैंने मॉडलिंग की, मैंने कुछ शूट्स किए थे. So this is something that I would want to do it, but part time, not full time. But yes, definitely I have थोड़ा सा liking और थोड़ा सा inclination towards modeling. So I will do it maybe, मतलब but that will only be part time. अच्छा, सो मतलब फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कर दैट सकते आप मॉडलिंग करोगे. हो. ग्रेट. अच्छा, एक क्वेश्चन और, लाइक टॉकिंग अबाउट, एक वो टाइम भी था जब सीए फाइनल में आपका ब्रेक लगा था, टू द टाइम जब आपको इनवाइट करा खुद आईसीआई ने टू बी द गेस्ट, चीफ गेस्ट इन अ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ आईसीआई. तो वो जो लाइफ साइकिल है फ्रॉम दैट मोमेंट जहां पर खुद पर शायद शक हो रहा था कि हाँ. क्या गलतियां कर दी मैंने, टू दैट मोमेंट जहां पर आप लोगों को अब एनकरेज कर रहे हो, सो व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर फीलिंग? Okay, so firstly is it is not that कि मेरे को attempt नहीं लगे, मैं फेल नहीं हुई. Of course I have seen failures twice in my CA, throughout my CA journey. एक बार इंटर में और एक बार फाइनल में. उस टाइम जब इंसान फेल हो जाता है ना, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है और इतना डर लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि वापस फेल ना हो जाओ. और फेल एंड एट द सेम टाइम कुछ इनसिक्योरिटीज होती है या फिर कुछ अनसर्टेनिटीज होती है लाइफ की, उसको लेकर और डर लगता है कि यार व्हाट इफ कि इसी में आपके साल चले जाएंगे, ये साल वेस्ट हो जाएगा. बहुत डर लगता है. इट इज नॉट कि आई नो द, क्योंकि थोड़े टाइम पहले, कुछ महीनों पहले ही मैं स्टूडेंट थी सीए फाइनल की. एंड सो आई हैव सीन दैट. अभी क्या हुआ था कि बट कहीं ना कहीं देर इज ऑलवेज मेक श्योर दिस वन थिंग कि जितना हो सके आप पैनिक मत करो, क्योंकि जितना आप पैनिक करोगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी पढ़ाई में, एंड उतना डर के जितना पढ़ोगे तो उतना जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा. सो ये गलती, मैंने कुछ गलतियां कर दी थी उस अटेम्प्ट में. एंड देन इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई जस्ट मेड श्योर कि यार कुछ भी हो जाए अब अपन शांत रह के पढ़ाई करेंगे और जो होगा देखा जाएगा. सो यू नीड टू हैव दिस जिद. फर्स्टली इज आई ऑलवेज फील कि नॉट एवरी इंटेलिजेंट पर्सन बिकम्स अ सीए, बट एवरी डिसिप्लिन्ड पर्सन बिकम्स अ सीए. एंड सीए के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बट सीए के लिए जिद चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए सुबह, यू नीड दैट डिसिप्लिन कि यार कितनी भी बारिश, ठंड, गर्मी, कुछ भी हो, अगर 5 बजे या 4 बजे सही टेबल पे आना है तो फिर आना ही है. सो यू नीड दैट डिसिप्लिन. द सेकेंड थिंग इज जो शिफ्ट हुआ था कि मतलब वन ऑफ माई रील वेंट वायरल ऑन लिंक्डइन एंड दैट जहाँ पे मैंने अपनी सीए की जर्नी शेयर की थी एंड दैट वाज सीन बाय सम कोटा सेक्टर के उन्होंने देखा था, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वुमेन्स डे पे. सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग कि यार कुछ टाइम पहले जिस इंस्टीट्यूट ने मुझे इतना डराया था, जिसकी वजह से मुझे इतना डर लगता था वो डिग्री के लिए आज वो मुझे एज अ गेस्ट बुला रही. सो इट वाज ग्रेट. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू चेंज इज योर माइंडसेट. जितना हो सके शांत रहो, पैनिक मत करो. कभी भी मे बी आपको उसके रिजल्ट्स अभी नहीं मिलेंगे, तुरंत नहीं मिलेंगे, बट आप जो भी स्ट्रगल्स है, आपके जो सैक्रिफाइसेस है, ट्रस्ट मी ऑल योर स्ट्रगल्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी एंड दैट इज गोइंग टू मेक योर सक्सेस स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग. सो अगर इवन इफ यू गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, ज्यादा उस पे ये मत करो. ये देखो कि आप आपका लॉन्ग टर्म विजन पे बार बार फोकस करो रादर देन कि अभी ये करना पड़ रहा है. बिकॉज ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल definitely you will be where you want to be and you will get everything that you always wanted to get. So maybe उसके results अभी नहीं मिलेंगे but compounding होके एक साथ जरूर मिलेंगे. This is one thing that I have learned. अच्छा, एक चीज, लाइक टॉकिंग अबाउट यू, यू हैड बीन फॉलोइंग योर पैशन इवन बिफोर बिकमिंग सीए, चाहे बात करें योगा की या फिर पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल. सो हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर सीए, टॉकिंग अबाउट दीज अदर फील्ड्स, चाहे पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, चाहे हम बात करें एंकरिंग की, मेंटोरशिप की, या फिर हम बात करें योगा की. सो इन सब चीजों में क्या चेंज आया है आफ्टर बिकमिंग सीए? सो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मैं सीए कर रही थी तब मुझे कोई जानता नहीं था. ठीक है, मैं ये सारी स्किल्स परस्यू कर रही थी, मैं ये पैशन फॉलो कर रही थी, लोग बोलते हैं फॉलो, सब कुछ कर रही थी. बट आई फील सीए बनने के बाद आई गॉट अ बिगर विजिबिलिटी, अ लार्ज विजिबिलिटी कि कोई बच्चा सीए के साथ साथ ये सारी चीजें कैसे कर रहा है. सो आई थिंक आई वॉज फॉलोइंग माई पैशन सीए के साथ साथ, बट कहीं ना कहीं जब मैं सीए कर रही थी ना, मुझे डर लग रहा था कि इज दिस द राइट कोर्स फॉर मी, एंड इफ नॉट व्हाट इफ आई एंड अप वेस्टिंग मोस्ट क्रूशियल इयर्स ऑफ माई लाइफ. मैं इतने साल दे दूंगी एक ऐसे कोर्स के लिए. तो
मैं मे बी मतलब बीच बीच में ऐसा लगता था शुड आई स्विच माय करियर, शुड आई परस्यू समथिंग एल्स, क्योंकि ये सारी चीजों में भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट था और उतना ही आई वाज मेकिंग मनी। ऐसा नहीं कि आई हैड द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ इट वहां से भी। सो द थिंग इज कि ऑफ कोर्स मुझे लगता था, बट मैंने मेरा माइंडसेट ये था कि अब मैंने अगर सीए किया है, अब मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया है, तो मुझे इसको खत्म करना है। एंड देन सीए बनने के बाद when I said people कि मैंने सीए के साथ साथ ये सारी चीजें की, so I got a visibility, so now people know me not because I am a CA but because कि मैंने पैशन को फॉलो किया सीए के साथ साथ। so becoming a CA is definitely has definitely been a synergy for me because it has given me a visibility। सीए के साथ सीए के स्टूडेंट्स को I got a पॉइंट टू प्रूव कि आप सीए के साथ साथ ये सारी चीजें भी कर सकते हो एंड नॉट जस्ट कि अगर आप सीए कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करो तो आपको अपने पैशन को छोड़ देना है। सो तो जब मुझे बहुत लो फील होता था, मेरी एक फ्रेंड बोलती थी कि सोच सुरभि तू ये सारी चीजें करी, अगर इसमें सीए का टैग लग जाएगा तो कितनी मतलब दैट वुड बी सो ग्रेट, मतलब इट वुड बी अ चेरी ऑन द केक। और तब मुझे कभी भी सेल्फ डाउट होता था, मैं ये चीज सोचती थी कि यार चलो सीए के साथ साथ करेंगे तो मतलब ये भी लगेगा कि हाँ सीए भी है ये भी है। सो इट इज कि इफ आई कैन डू इट, समवन सो फट्टू लाइक मी, समवन सो एवरेज लाइक मी, अगर मैं बस अपनी जिद से कर सकती हूँ ना, तो आई फील कोई भी कर सकता है। तो अच्छा, अगर बात करें एक सीए फील्ड के यूट्यूबर की और एक नॉन सीए फील्ड के यूट्यूबर की, सो हु अमंग एवरीवन हु इज देयर ऑन यूट्यूब आर योर फेवरेट्स? एक सीए फील्ड वाले और एक नॉन सीए फील्ड वाले। सीए फील्ड वाले, सीए फील्ड वाले फेवरेट, ओके सो सीए फील्ड में भी यूट्यूबर एक मेल और एक फीमेल कर दो। सीए फील्ड में क्या एक बोल रहे हो? मेल और फीमेल, सीए फील्ड में एक फेवरेट मेल यूट्यूबर और एक फेवरेट फीमेल यूट्यूबर, नॉन सीए में आपकी मर्जी। ओके ठीक है। सो फेवरेट में अगर सीए यूट्यूबर, इट हैज टू बी अलीना रायस, इफ यू नो हर। या अलीना, हाँ। सो आई लव द वे शी मेक्स अ वीडियोस, आई लव द वे शी टॉक्स, उनका जो कंटेंट होता है इतनी क्लैरिटी होती है, द वे शी पोर्ट्रेज एंड हाउ शी स्टार्टेड हर जर्नी, आई हैव सीन हर जर्नी। So I think, and I have learned personally a lot from her. She is a chartered accountant by profession. She is also the face for Grow, जो है, जो. But yes, so this is one female that I genuinely look up to, and a CA content creator that I personally love, a YouTuber. She has a great following in YouTube, baby. I think it. हाँ, yes, so it has to be Alina. And non CA में I think it is Sandeep Maheshwari sir, because his videos give another level of energy and motivation to do something, so it has to be these two. ये तो है ही, बिकॉज मेरे को पॉडकास्ट करने का आइडिया भी संदीप महेश्वरी सर के वीडियोस देखकर ही आया था। अच्छा। So these two I personally do YouTube channels. अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो नॉर्मली काफी ज्यादा क्वालिफाइड लोगों से पूछते ही हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि क्या हम रिलेशनशिप के साथ सीए मैनेज कर सकते हैं या नहीं? सो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? Okay, so I'll be very honest, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पहले भी आ चुका है। See, I'll tell you one thing, दो चीज होती है। एक, it can be a boon for you, being in a relationship is not that कि आपका attempt लग जाएगा, and because अगर if you have someone who is supportive, who listens to you, क्योंकि at the end आप कितनी भी पढ़ाई करो, ठीक है, आप कितने भी स्मार्ट हो, at the end you need one person जिससे जाके आप बात कर सकते हो। It could be anyone, फिर if you have such friend, मदर फादर पेरेंट्स, या फिर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर वो इंसान है सुनने के लिए, यू वुड नीड समवन जो आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा मैनेज कर दे एंड जस्ट मेक्स यू बिलीव कि यार हो जाएगा, डोंट वरी। सो इफ यू हैव समवन जो आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है एंड मेक्स यू बिलीव कि आपसे हो जाएगा, देन इट इज गुड टू बी इन अ रिलेशनशिप इफ इट इज हेल्दी। बट अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मेंटल एनर्जी मेंटल ट्रॉमा हो रहा है और बहुत एनर्जी जा रही है ये सब चीजों में सॉर्ट आउट करने में, सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। बट देन इट इज गुड, मतलब आई वुड पर्सनली सजेस्ट, अगर कोई है who is supportive, who understands, then it is good। but अगर कोई है जो आपका बहुत एनर्जी जा रही है, क्योंकि अगर आप ये सब में ही रह जाओगे तो आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, सो ट्राई टू स्टे अवे। सो दिस इज पर्सन टू पर्सन कि कितना आपका मेंटली कितना सामने वाला इंसान आपको पीस दे रहा है एंड गिव्स यू द स्पेस टू वर्क ऑन योर करियर। बट यस, इफ इट इज गुड स्टे, अदरवाइज मूव आउट, स्टे अवे थोड़े टाइम के लिए। सीए बनने के बाद झगड़े कर लेना, मतलब सॉर्ट आउट कर लेना, बट सीए में हो तो फिर यू नीड मेंटल पीस, यू नीड शांति से पढ़ाई करना, तो ही आप फोकस कर पाओगे
ये सब करोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। And what are your future plans for next 5 years? Like एक तो हमको पता चल गया that हम देख सकते हैं सुरभि को मॉडलिंग करते हुए, बट उसके अलावा और क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? सो सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो 5 ईयर प्लानिंग है ना, ये मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो 5 ईयर्स है वो अलग अलग ईयर्स से बने होते हैं, ईयर्स बने होते हैं मंथ से, मंथ्स बने होते हैं डे से। सो फोकस ऑन वन डे को, हर दिन को मेक ट्राई टू मेक इट प्रोडक्टिव, रादर देन कि क्योंकि 5 साल में क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता, बट आई नो कि मे बी शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, मे बी मेरे जो दूसरे कमिटमेंट्स है, मैंने जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स जो मैंने ऐप टेकन अप, सो आई नो कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट, एंड दिस इज हाउ यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। एक मैं अच्छा दोगे, यू विल गेट मोर ऑफ इट। सो ये 5 ईयर वाला, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं कर लूँ और अगर 5 साल में वो नहीं मिलेगा तो व्हाई डू यू वांट टू बी डिसअपॉइंटेड। इससे अच्छा रादर देन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क दैट यू टेकन अप एंड देन उसमें डू इट, वो अपने आप वो 5 ईयर सुधर जाएंगे। अगर आप रोज रोज एवरी डे सुधारोगे तो आपके 5 साल अपने आप सुधर जाएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगेन डिस्क्लेमर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपका किसी क्वेश्चन नहीं स्टूडेंट ने है। ही पूछा है। सो उस स्टूडेंट ने ये कहा है दैट अब तो सीए भी हो गई, काफी ज्यादा फेमस भी हो रखे शादी हो। कब कर रहे हो? हाँ, हाँ, so देखा मैंने शादी क्वेश्चन ही अब- गेस कर लिया। वो स्टूडेंट को बोलो कि उनको मेरा नंबर दे देना कि इफ ही इज इंटरेस्टेड कट। ओके, देखो अभी तो यार सीए हुआ है, अभी मेरी करियर बनाने की एज है, ठीक है, मैं ये सब अभी नहीं सोच रही हूँ, बहुत टाइम है अभी तो यार। सो मैं अभी आई एम ओनली 23 यार, मतलब क्या। सो आई हैव लाइक 4 to 5 years, उसके बाद शादी का सोचेंगे। तो अभी बहुत टाइम है, मतलब इन शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच दी फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया ऑनेस्टली। मेरे को ना इससे पहले इतनी नींद आ रही थी, बट मेरे को बात करके इतना मजा आया ना। इट वाज ग्रेट चैटिंग विथ यू एंड शेयरिंग माय जर्नी, सम पार्ट ऑफ माय जर्नी। सो थैंक यू सो मच रुपेश फॉर हैविंग मी, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, कीप गोइंग, कीप डूइंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप थैंक यू। जो भी एग्जाम्स हो जल्दी से जल्दी फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाओ, एंड मे यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी वेरी सून। In case if anyone needs any kind of guidance or want to connect with me, you can reach out to me on my Instagram, LinkedIn, or Instagram, LinkedIn, and what else? I think these are the on YouTube. यूट्यूब। हाँ, so you can subscribe to my YouTube channel, follow me on LinkedIn and Instagram. And in case if you guys need any guidance or anything, feel free to reach out to me. Thank you so much, everyone. I had a lot of fun chatting with you. Thank you, everyone. This was Surbhi Gandhi signing off. थैंक यू।